Across the nations, across the globe, we are the Stars of David. And today, we have three cities joining together in prayer and praise and in worship. And every week, we come together on a Friday. And what do we pray for? We pray for our city, my city, Quetta, on a Friday. And in all the meetings that we come together, we are praying for Pakistan. Every province is being uplifted in prayers because there's power in prayer. There's power in prayer, people of God. You cannot imagine the power that is present in prayer of the one who follows Christ. And sadly, not all Christians are following Christ. Many are just attending churches and tick boxing their sheets of righteousness. That I have gone to church, I have prayed, I have fasted, I have given my offering, I give tithe, I am righteous. But what is righteousness? And righteousness is very important because it is written that God is listening and ready to answer the prayers of a righteous person. And here we are. Every Christian thinks, I am right. And righteousness is the second armor of God, as we have already been. And today is the seventh day in a series of the armor of God. And today I'll be talking about prayer, the foundation of a Christian life. Because you cannot be righteous on your own, tick boxing, whatever you think is right. Because what you think is right can be wrong. But what is right? What Jesus is thinking of you. And above all, what God thinks of you. And remember, God and Jesus, they are one. They're one in the spirit, and their thoughts are the same. They don't have different thoughts. They work in unison. And this is what our God desires, that we work in unison. And the only way we can work in unison is by the power of the Holy Spirit. So as I start, and as this month ends, the month of June, which is the so-called Pride Month in the Western country, I thank God for my country, where this month is not adored as the Pride Month. I thank God for all the people who are born again. And I will be praying for all those who have slid back, and even the born agains who have not come to know Jesus in the fullness and entirety of his being. Heavenly Father, I bring everyone, all three of us from Lahore, Quetta, and London, into your presence. Almighty God, we yield and surrender to your will. Father God, let your will be seen in our lives, because in our own being, in our own will, and by our own righteousness, we cannot reach you. We cannot reach you. And there is only one way, and his name is Jesus. He knows the way to the Father. But many are clinging on to the cross, thinking that the cross will save them. Yet they continue in their unrighteous and unlawful ways. Father God, I uphold myself so that you can bring me into the perfect righteousness of your Son, Jesus, so that I can become, if 10% of what Jesus was, that will be an achievement. Because that is what we ought to do, that I decrease and Jesus increase every single day. And when Jesus is seen in us, when his reflection is seen in us, Father God, that is the time you are joyful. You are joyful, and the heaven rejoices. Father God, as we are about to start praise and lift you up and enthrone you with our praises,
I thank you for your Son, your only begotten Son, and I thank you, Jesus, for your obedience to the Father. And thank you, sweet Holy Spirit, that you are communing with us wherever we are in the world, because you are not bound by time, space, or matter. You're not bound by any electrical equipment. You only bind us by hearts. And when our hearts are bound by you, Holy Spirit, there is no gap. There is nothing that can not that can become an obstacle to reach you. Thank you that you are the one who takes us to the presence of God, and that's the place that is called Holy of Holies. I ask and we receive in the only name that I know, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. And the people said, Amen. 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 Let's praise the Lord. Praise God. शुक्र। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, loud and clear. परस्तिश के आगाज में हम ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 96। आओ एक नवा गीत। Hallelujah. एक नवा गीत रब लई गाओ, एक नवा गीत रब लई गाओ, सब जो जमीन दे ओ गावन लई आओ, सब जो जमीन दे हो गावन लई आओ, एक नवा गीत सब बुजुर्गी यहोवा दे नादी, सब बुजुर्गी यहोवा दे नादी, रोज रोज मुक्ति होस्ती सुनाओ, रोज रोज मुक्ति होस्ती सुनाओ, आओ एक नवा गीत। बड़े कम तुसी लोकां नू दसो, बड़े कम तुसी लोकां नू दसो, कौम अगे बुजुर्गी बताओ, कौम अगे बुजुर्गी बताओ, आओ एक नवा गीत। Oh, yes, Lord. जो रब है सब देवता नालो बड़ा, जो रब है सारे देवता नालो बड़ा, उसी लायक पाना ओनू बड़या, उसी लायक पाना ओनू बड़या, एक नवा गीत। कादे कादे पुत सारे झूठे ते ना चीज है, कादे बुत सारे झूठे ते ना चीज है, आसमान दे खुदा नू खालिक बनाओ, आसमान दे खुदा नू खालिक बनाओ, आओ एक नवा गीत। बेहजूर विच है इज्जत दौलत, बेहजूर विच है इज्जत दौलत, पाकर बेचो दे नेकी नालाई, पाकर बेचो दे नेकी नालाई, एक नवा गीत रब लई गाओ, एक नवा गीत रब लई गाओ, सब जो जमीन पे हो गावन लई आओ, सब जो जमीन पे हो गावन लई आओ, आओ एक नवा गीत।
Praise the Lord. Praise प्रेज the Lord. लॉर्ड, खुदा उनका प्रेज शुक्र। लॉर्ड। बेशक बेशक उसके हजूर विच है इज्जत दौलत, वो सब कुछ देने वाला है। इज्जत दौलत, शोहरत, सब कुछ वो दे सकता है। सलमान बादशाह ने उसने दौलत नहीं मांगी, उसने हिकमत मांगी। उसको हिकमत मिली और उसने हिकमत से बहुत पैसा कमाया, और हिकमत से ही आप पैसा कमाते हैं। लेकिन उससे गुनाह सरजद हुआ। उसने पैसे कमाने के लिए बहुत सी औरतों को खुश किया, और उसमें वो नंबर बहुत ज्यादा हो गया, और वो था 1,000। आए हम खुदावंद को खुश करें और औरतों को खुश ना करें, क्योंकि रुपया पैसा भी वो दे सकता है, और हिकमत उससे जो मिलती है, उसके तख्त से वो हिकमत मांगे जिससे हम रूहों का इम्तियाज कर सकें, ताकि हम किसी ऐसे जाल में ना फंसे कि हमारी जिंदगी में कोई जज़बेल आ जाए, कि हमारी जिंदगियों में कोई गुलायत आए और हमें गिरा सके, कि हमारी जिंदगियों में कोई डिलाइला आए और हमें धोखा दे सके। तो खुदावन के बंदे और बंदियां उसके तख्त की तरफ देखें, क्योंकि यीशु जल्द आ रहा है। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. रस्तिश में आगे बढ़ते हैं और गीत गाएंगे, यीशु है मेरा कैसा खुशहाल। बहुत खूबसूरत गीत है, मुझे बहुत पसंद है। बेशक, he is everything. यीशु है मेरा कैसा खुशहाल, दिल में वो देता शानो जलाल, बारिश जाता साकिन आसमान, उस पर मेरा था पूरा ईमान। ये मेरा हाल है, ये मेरी शान, उसकी तारीफ मैं करता रहा। ये मेरा हाल है, ये मेरी शान, उसकी तारीफ मैं करता रहा। काबिल भरोसा चैन है आंसू, अब मेरे दिल में गम है ना दूर, Yes, Lord Jesus. देता है यीशु रहम का निशान, Yes. फरिश्ते करते क्या था बयान। Beautiful. ये मेरा हाल है, ये मेरी शान, उसकी तारीफ मैं करता रहा। ये मेरा हाल है, ये मेरी शान, उसकी तारीफ मैं करता रहा। यीशु पर रखा अपना ईमान, उसमें मैं होता नया इंसान, उसके प्यार से होता हूँ से
के बहता दले, ये मेरा हाल है, ये मेरी शान, उसकी तारीफ है। ये मेरा हाल है, ये मेरी शान, उसकी तारीफ करता है। बेशक बेशक, उसकी तारीफ करते ना मेरी जुबान थकती है और ना मेरा दिल, बिकॉज वो तारीफ के लायक है। और आज जो ये आपने गीत गाया, मुझे नहीं पता था ये उर्दू में भी है, बिकॉज मुझे इसका इंग्लिश वर्जन आता है, और ये गीत मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज ये गीत है जिसकी वजह से आई एम मैरिड टू माई हस्बैंड टुडे। ये गीत था प्रेज जब द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और क्रिसमस का एक इवेंट मुझे पाखरू ने कहा कि करवाना है, और मैं पीछे भागती हूँ क्योंकि मैं ना कभी इवेंट्स करवाए थे और ना मैं कभी स्टेज पे जाना चाहती थी। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन 2004 कि जब पाखरू ने मुझे उबारा कि इवेंट करवाना है, और माय पेरेंट्स वर शॉक्ड कि इस तरह कभी इवेंट में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये प्रोग्राम कैसे करवाएगी। But when the Holy Spirit tells me I have to do, whether someone likes it or not, doesn't like it. और वो जो इवेंट जब हुआ, तो जब उसकी हम क्वायर मैं सेलेक्ट कर रही थी, और खुदावन ने कहा कि क्वायर सेलेक्ट करो, और मैंने वहां पे तमाम जो क्रिश्चियन हॉस्पिटल में बॉयज थे उनको बुलाया कि अगर कोई गीत गाना चाहता है, स्क्वायर में आना चाहता है, तो वो प्लीज आए। एंड उसमें बहुत से आए सिलेक्शन के लिए, और interestingly Hanan was not in the choir, but he came up, and this is the song that he sang. And I just want to sing one para which is very 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 close to my heart, because we are very close to that time now, and that talks about rapture. So bear with me with my voice, but my husband tells me not to sing, but I want to sing, and I hope I someday can get my chords correct and I can sing for the Lord. So just bear with प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। sing just one chorus, which is starts from perfect submission. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. And God is enthroned on the praises of his people. Let's praise him. And he will listen, and he will send angels to answer every prayer if you just enthrone him with your praises. Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र, खुदा उनकी तारीफ हो। Oh, hallelujah. और इस दिश में आगे बढ़ते हैं, और ये नेक्स्ट गीत मुझे बहुत पसंद है। ये चर्च में अक्सर हम गाते हैं, जय जय यीशु। Oh, yes. और आपको पता है शोएब, ये ना मैं लाहौर में बहुत मिस करती थी, और यहाँ पे भी डेफिनेटली मिस करती हूँ। ये गीत जो है ना, कोयटा वालों को ही आता है। मैंने लाहौर में नहीं सुना लोगों को गाते हुए, और जब भी मैंने इसको मेंशन किया है तो उनको धुन भी नहीं आती। और अब ये मैं चाहूंगी कि जब आप नेक्स्ट टाइम लाहौर आए ना, तो आप लीड करें, बिकॉज ये वहां पे
को नहीं आता, और जी ये एग्जैक्टली exactly. होता है। अभी जब हम कश्मीर गए थे तब भी मैंने नोटिस किया कि जब मैंने ये गाया था तो काफी सारे लोग नहीं जानते इस गीत को। एग्जैक्टली क्योंकि ज्यादातर लोग हाँ वहां जी। लाहौर से थे, तो लाहौर में ना को बताया ये गीत नहीं आता लोगों को। और ये जब सब एक ही उसमें जब लोगों को आएगा और सब मिल, सो देर इज सो मच पावर इन दिस सॉन्ग। और आपको लिटरली फील होता है कि नो वी नो वी आर टुगेदर इन इन वन वॉइस वन हार्ट। और इसके कुछ वर्ड्स डेफिनेटली वो उर्दू के नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो, ये पंजाबी भी नहीं है। ये हिंदी है। ये ये हिंदी हिंदी में है। है। ओके। जी हाँ, जी। हृदय में जो शांति भरने वाला, ऑफ कोर्स हाँ हृदय जी। कहते हैं। तो यस यस, प्लीज गो ऑन। और मैं चाहूंगी कि ये हमें नेक्स्ट टाइम पेपर पे मैं सारा लिख लूं, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं ताकि लोगों को इसके अल्फाज भी आए। बल्कि इनफैक्ट जब कोयटा आऊंगी तो इसकी कॉपी ले लूंगी, वहां तो गीत की किताब में लिखा हुआ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। श्योर श्योर श्योर। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। प्रेज द लॉर्ड। जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय अमृतियो जय जयकार सर्जनहार तारनहार तारनहार जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु दीनों का दुख हरने वाला हृदय में शांति भरने वाला दीनों का दुख हरने वाला हृदय में शांति भरने वाला जय जन रंजन जय दुख भंजन जय जन रंजन जय दुख भंजन जय जयकार सर्जनहार पालनहार तारनहार जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु फिर तन धार लियो तारा हे निज प्राण कियो छुटकारा फिर तन धार लियो तारा दे निज प्राण कियो छुटकारा जय जग त्राता जय सुख दाता जय जग त्राता जय सुख दाता जय जयकार सर्जनहार पालनहार तारनहार जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु फिरतियो बंधन भंजन हारा ईक्षिए जीवन देवन हारा फिरतियो बंधन भंजन हारा ईक्षिए जीवन देवन हारा रोगन शोगन एक उधारा रोगन शोगन एक उधारा जय जयकार सुरजनहार पालनहार तारनहार जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जयकार करो सब प्यारो नर नारी एक संग पुकारो जय जयकार करो सब प्यारो नर नारी एक संग पुकारो नारे मारो जय ललकारो नारे मारो जय ललकारो जय जयकार सर्जनहार पालनहार तारनहार जय जय यीशु
जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। Oh, Praise the Lord. praise the Lord. जय हो उसकी, जय हो, जय हो. Yes. Lord, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, he's coming. He's coming, people. उसकी परस्तिश, उसकी तारीफ, उसकी ताजीम, वो खुदावन जो कि जिसने हमें छोड़ा नहीं, उसने हमें छोड़ा नहीं, उसने अपना बेटा बख्श दिया और वो ही आ रहा है हमें लेने के लिए. हम तैयारी कर रहे हैं और हमें लोगों को तैयार करने की जरूरत है. हमें लोगों को तैयार करने की जरूरत है. प्रे 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 विदाउट सीजिंग पीपल. यस, प्रे. लेट्स कंटिन्यू टू प्रेज. Praise the Lord. God का शुक्र. नेक्स्ट एंड लास्ट गीत आज की वर्शिप का, पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं. Oh, yes. Beautiful, beautiful. पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं, काली दामन है कालिका से है. Will everyone who doesn't have the Holy Spirit. Yes. Hallelujah. कोई तृष्णा से ना लौटे, कोई तृष्णा से ना लौटे, झोलियां भरना चाहते हैं. पाकरू यीशु के प्यासे हैं. Hallelujah. तेरी सूरत खुदा की सूरत है, Lord. तेरी सीरत मसीह की सीरत है, तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है. कर करम आज अपने लोगों पर, कर करम आज Touch their hearts. अपने लोगों पर. Request you to touch hearts. पाक यीशु से मिलना चाहते हैं, पाकरू यीशु के प्यासे हैं. है खुदा रूह हमें सिखाता जा, Yes, Holy Spirit. हवामुझी पे तू दिलाता जा. Sweet Holy Spirit. है खुदा रूह हमें सिखाता जा, Your ways. हवामुझी पे तू दिलाता जा. साथ ईमान भी बढ़ाता जा, Yes, Holy Spirit. साथ ईमान भी बढ़ाता जा. हाथ अपने उठाए Oh, आते Lord. हैं, Yes, Lord. पाकरू यीशु के प्यासे Lord, please हैं. increase
सफाई खाली दामन है, सुन खाली लो कासे, कोई तिश्ना यहाँ से ना लौटे, कोई तिश्ना यहाँ से ना लौटे, झोलियाँ फूल भरना चाहते हैं, पाखरू यीशु के प्यासे हैं। Praise the Lord, praise प्रेज the द Lord, लॉर्ड, hallelujah. लॉर्ड हालेलुया। यीशु ने कहा था स्लीप पे, मैं प्यासा हूं। उनके 7 कलमात हम हर गुड फ्राइडे को सुनते हैं, लेकिन मैं अब से दुआ करती हूँ कि खुदावन हम सबको सुनने वाले कान दे, क्योंकि कलाम में लिखा है ये सुनते हुए नहीं सुनते, ये सुनते हुए नहीं सुनते। उसी तरह से है जैसे कि आप भेड़ बकरियों की आवाज सुनते हैं, आप चिड़ियों की आवाज सुनते हैं, आप डिफरेंट जानवरों की आवाज सुनते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन आपको सुनाई पड़ता है। ऐसे ही खुदावन जब बात करता है तो हम सुन रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। जिस दिन वो मसीही जिसको समझ आ जाए कि खुदा क्या कलाम कर रहा है, उसकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि वो अंदर से काम करना चाहता है। और अंदर से काम इसलिए करना चाहता है क्योंकि जैसे हम बढ़ते हैं, हमें दुनिया की चलबाजियों का पता चलता है, तो हम दुनिया में चलने के लिए वाइज हो जाते हैं, अकलमंद हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम अकलमंद नहीं होते और कबूतर ही रह जाते हैं तो हमें फाड़ खाया जाएगा। ये दुनिया फाड़ खाती है, कबूतर को फाड़ खाता है शेर जो कि घूमता है इस दुनिया में, who's come to kill, steal and destroy, but his time is limited. और जब हम छोटे होते हैं तब हमें किसी चीज की होश नहीं होती, हम इतने वाइज नहीं होते, हम इतने अक्लमंद नहीं होते। और इसीलिए कलाम कहता है मत्ती की अंजील उसका 19वां बाब उसकी 14वीं आयत में कि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। तो आज हम एक बहुत ही प्यारे बच्चे के लिए, और बच्चे सारे प्यारे होते हैं, लेकिन सबसे प्यारा बच्चा कौन सा होता है? अपना बच्चा। क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। और आज एक बच्चे की बर्थडे है और वो हमारे लीड वर्शिपर फ्रॉम कोयटा श्रेव है। और श्रेब और उनकी मिसेस को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। उनका दूसरे नंबर के बेटे की आज दूसरी सालगिरह है। सो ही विल लीव अस नाउ टू हेल्प विद पार्टी सेलिब्रेशन एंड प्रिपरेशन, बिकॉज ऑफ कोर्स हम इस दुनिया में हैं और बच्चों के लिए करना माँ बाप का फर्ज होता है। तो उन्होंने अपना खिदमत का फर्ज भी निभाया, क्योंकि आज उन्होंने छुट्टी नहीं मांगी, वो आए और उन्होंने कहा कि मैं प्रस्तिश के बाद मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं चला जाऊं। तो दैट इज हिज ह्यूमिलिटी, दैट ही कुड हैव सेड कि मैं नहीं आ सकता, बट ही स्टिल गिव टाइम to the Lord, because he's not giving me time, he's giving time to the Lord because he's a worshipper, and when he worships, he's worshiping for the Lord. और जैसे कि हम प्यासे हैं, he is thirsty, I am thirsty, जब तक हम में प्यास रहेगी ना तब तक हम पानी पिएंगे। और जो समझता है कि मैं फुल हो गया, मैंने पानी पी लिया, मैं भर गया, that means he has become Jesus. And if you have become Jesus, then we ought to see the miracles that Jesus performed. I have not even become a disciple of Christ 100%, because if I was, then I should be going around doing what the disciples were doing, because the disciples were healing people, they were performing miracles. उनके साय से ही लोग ठीक हो जाते थे। तो हमें यीशु का डिसाइपल बनना है, एक को छोड़ के, क्योंकि उसका डिसाइपल यहूदा इस्करियोती भी था। तो जान लें कि हम जब मिनिस्ट्री में काम करते हैं तो हमारे ताल्लुक कई दफा ऐसे डिसाइपल से हो जाते हैं जो कि जूडस का रोल प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन डरने की बात नहीं, क्योंकि जूडस को खुद ही ख्याल आ जाएगा। हाँ, कई दफा अक्सर जूडस जो हैं वो
बुरा काम करने के बाद उनको ख्याल आता है. बट आई एम प्रेइंग फॉर ऑल जुडसेस कि उनको उनकी आंख बंद होने से पहले उनके होश ठिकाने आ जाएं. So we'll just pray for the little Jair who's turning today, turned today, today. So let's just close our eyes and pray for this little one. God loves him, and God as God loves all the children. Lord, I bring Jair into your presence, Lord. You love children. Jesus loved children. He said, do not hinder them. Let them come to me, because the kingdom of heaven is such as these. Father God, it was your plan that man and woman come together and have children, and have children who are holy. But before this could happen, Eve was tempted. The person who was supposed to carry a child and create a being within herself, she was tempted, and she gave in to the temptation. And the one who was supposed to produce the seed, he followed her, and therefore we fell. But Father God, now when we get knotted together in marriage, it is called a holy matrimony. Holy. Why? Because of Jesus. Because of Jesus, when we bind in marriage, we become holy, and therefore the children that are produced are holy as long as the parents are following Jesus and they love Jesus. That in that case, their matrimony will be holy. So Father God, I thank you for this holy matrimony that has produced children whom you love, and as they grow in the flesh, Father God, enable them to grow in the spirit as well. And as they are led by wonderful parents who teach them and preach Jesus to them, Father God, I know they're on the right path. As a child, they will be mischievous, they will be naughty, but then they are children. They're not adults. There has to be a difference between adults and children, and you know the difference, and therefore you love the children, Father God. I bless this child, and I first bless him with the gifts of the Holy Spirit. Father God, the Spirit is beyond the flesh. The flesh grows and grows. Whether you give plenty to eat or little, it will grow. But if there is no spirit in it, then there's a problem. So Father God, I thank you for these two children are walking just as you desire in the Spirit. Why? Because of their parents. Because children follow their parents. Father God, I thank you for them, the parents who are leading them, and especially the father who's a worshiper, who honors you and who honors authority. I thank you for his humility, Father God. Bless him in the coming days, in the spirit more and in the flesh as well. Let there be no lack in his life as he provides for his family, his wife, his children, Father God, as being the head of the house. Let there be no lack in his family. No lack, no lack, no lack. I call upon blessings, both spiritual and financial, so that you may always be a giver, and never ask anybody. You may lend to many, but you never ask anybody. You will be blessed beyond measure. Yes, you will be blessed beyond measure because of your faithfulness. God has seen your faithfulness, and blessings are chasing you. Blessings in the flesh are chasing you as you chase Jesus. I ask and I believe that you have received, and you have. If you have, say, I receive, and say amen and amen in the only name that we know, our Lord and Savior, Jesus Christ. I receive. Amen. Amen. I receive blessing. And amen. Thank you so much, Shreb. We will continue with the prayer. He's a prayer person. That's why he can reach that holiness, that holy place, because without prayer and without a prayer life, you will never reach that holy place.
You can praise, you can shout, you can scream, you can dance, and you can feel that God is with you. But that means that the Holy Spirit is only in the environment, and you are enjoying that pleasure of the presence of the Lord. But as you leave that place of praise, then you go empty. Because if you want to be full, you need to be having a life full of prayer. Oh, thank you, Father God, for all these people who are here. And as I continue to tell them about prayer, Father God, enable me to take them to the depths of where you desire them all to be, because that is where the treasures are found. The treasures are found in the depth of the sea. No treasure floats on the top. Every treasure is found in the depth of the sea. And as we dive more into the word, Father God, there are pearls in the word hidden. And let me bring those pearls up to the surface and show it to the world that these are the pearls that God desires to give you. Oh, thank you, Heavenly Father, for this wonderful time, this wonderful moment. And I bless Koita as this worshiper leaves, Father God, wherever he steps from this day on, Father God. May he be a blessing for every single house, Father God. Let there be shalom wherever he goes, peace, because this is the third fruit of the Holy Spirit. As he has been patient in his life, and as he has seen troubled times as a child, and as his mother has seen troubled times when raising them, Father God, no trouble goes to waste, no pain goes to waste, because God is watching everything, because he is a God who is El Roi, the all-seeing God. He sees, he feels, and he answers. Be blessed and stay blessed. So we will be talking about prayer today. So इससे पहले कि मैं शुरू करूं, I want some interaction today. तो हम सब जो हैं वो मसीह को अपना नजात दहिंदा मानते हैं, और नजात दहिंदा मान लेना ही काफी नहीं होता, बिकॉज अगर हम सिर्फ कहें कि मसीह आया, मुआ, जी गया और मैं सेव हूं, so then the story doesn't end there, because it is written. Many will say, who are performing miracles, that God, I did all this in your name. I delivered, I healed, I did this. And what will God say? He will say, I do not know you. I do not know you. So Christianity is not about miracles and getting things what you want. I repeat, Christianity is not always having what you want. Christianity is desiring what you need, because हमारी needs और wants में difference है. हमारी नीड है कि हम एक रोटी खाएं और हमारा पेट भर जाए. हमारी वांट है कि आज पुलाव भी है, बिरयानी भी है, मुर्गी भी है, और मुख्तलिफ किस्म के रोगनी कबाब भी हैं, और हम इतना खा लें कि जब तक कि हमें आवाज़ारी ना हो जाए. That is our want. That is कि हमारी जब नीयत नहीं भरती, तो फिर वो एक्सेस हमारी जिंदगी में हमारे लिए तकलीफ दे होता है. और एक चीज है जिससे आपका पेट कभी नहीं भरना चाहिए और आपको हमेशा उससे ब्लेसिंग मिलेगी, और वो है प्रेयर, दुआ. लेकिन हमारी क्रिश्चियंस की जो प्रेयर है वो बहुत सेल्फिश प्रेयर हो गई है. हमारी प्रेयर जो है वो हमसे शुरू होके हम पे ही खत्म हो जाती है, और हमसे शुरू होके हमारी फैमिली पे खत्म हो जाती है. But this is not what a Christian is called to do, because Christian means a follower of Christ. That means कि आपको वो करना है जो यीशु करता है या करता था. तो हम में से कितने मसीह बहन भाई हैं जो वो कर रहे हैं जो यीशु करता था? हमसे अच्छे बहुत दूसरे मज़ाहिब हैं, क्योंकि वो कम से कम अपने प्रॉफिट के पीछे तो चल रहे हैं. गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो तो आंख बंद होने के बाद ही पता चलता है जब हम दूसरी दुनिया में पहुंचते हैं कि हमने सही हम रास्ते पे अपनाया या गलत रास्ता अपनाया. दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन. बट वो चल रहे हैं.
बुद्धिस्ट अपने बुद्धा के पीछे चले जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम ऐसे बुद्धा करता था हम कर रहे हैं। हम प्रॉफिट मोहम्मद के पीछे चल रहे हैं। ही taught us this, he used to do a lot of charity। वो बहुत ज्यादा उनको ऑर्फन्स के लिए वो काम करते थे, वो जो कि बेवा होती थी उनको बहुत हेल्प करते थे। They are following their prophet. Jesus said, if I am the prophet, where is my honor? Why aren't you following Jesus? Why aren't you doing what Jesus did? Because it is very difficult to do what Jesus did. And people want to always choose a comfortable life and live in a comfort zone and feel good about whatever they are doing. This life is all about feeling good. Some Christians feel good by going to church, giving charity, giving tithe, giving offering, and they take pride in doing all this. But what is the condition of their heart? What is the condition of your heart? If the condition of your heart is not right with God, and if your heart is not considered a righteous heart, to phir there's a problem. There's a problem, because when the trumpet will be sounded, who will hear it? Who will hear it? उसी दिल तक उस ट्रम्पेट की आवाज पहुंचेगी जिसके कान अनॉइंटेड हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग क्रिश्चियंस मसा होना चाहते हैं, ऑयल की कुपियां ले लेके घूमते हैं पास्टर्स के पीछे कि हमें ब्लेस कर दें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अनॉइंटिंग क्या है उनको पता ही नहीं है, मसा क्या है उनको पता ही नहीं है। उनको सिर्फ ब्लेसिंग चाहिए, उनको सिर्फ ब्लेसिंग चाहिए। और उनके छोटा सा दिमाग की ब्लेसिंग का मतलब है कि मुझे अच्छा, मेरा घर अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे अच्छे हो जाए, मैं अच्छा खाना पीना हो जाए, हमारे पास पैसे हो जाए, ये ब्लेसिंग है। That is not blessing. That is only 10% of the blessing that God desires to give you. और हमारे क्रिश्चियंस वो 10% ब्लेसिंग के पीछे पीछे घूमते रहते हैं अपना कशकोल लेके। कभी एक पास्टर के पास, कभी दूसरे पास्टर के पास, कभी तीसरे के पास, कभी चौथे के पास। और जब किसी से नहीं मिलता तो सबसे नाराज होके घर में ही बैठ जाते हैं कि अब मैं चर्च ही नहीं जाऊंगा, मैं ना किसी पास्टर को सुनूंगा क्योंकि सब गलत है। We are not supposed to judge the pastors. Let them do what they are doing. God is there to judge. Don't take the job of God. We Christians are in the business of making God become jobless, because God is a judge. He will judge you. He will judge me. So let us not judge anyone. We must go and listen to what they are saying and try to do what they are saying, and not judge them for not doing what they are supposed to do. Because हमें ये नहीं पूछा जाएगा कि वो तुम जो जब आपसे सवाल किया जाएगा कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, तो आप कहेंगे वो पास्टर जो है ना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने फेलोशिप छोड़ दी। That's not written in the Bible. The Bible say continue in fellowship. Continue in fellowship. और अगर आप फेलोशिप में कंटिन्यू नहीं कर रहे because you do not like a pastor, because you do not like a person, because of his ways or because of her ways, then you will have no justification for your own self. Because हमें कलाम सुनने को और उस पर अमल करने के लिए बुलाया है, हमें तराजू लेके तोलने के लिए नहीं बुलाया। जिसके लिए हमें बुलाया है वो ये कहा है कि हमें किसी के साथ फेलोशिप रखनी है। और वो हम कैसे कर सकते हैं? जज करके नहीं, हम फलों को देख के कर सकते हैं, और फल छुपते नहीं। और रूह के फल जो है 9 है, और वो जिसकी जिंदगी में अगर आपको नजर आ रहे हैं तो जरूर उनके साथ फेलोशिप करें, और अगर नहीं नजर आ रहे हैं तो उनके लिए
बिद्दतें ना दूसरों से करें, उनके लिए दुआ गो हों, दुआ करें। हमारे क्रिश्चियंस ना बहुत ज्यादा गॉसिप में लग चुके हैं और दुआ उनकी जिंदगी से टैटा फ्रेश हो चुकी है, 9 2 11 हो चुकी है, and therefore they do not have the blessing of God on their lives, and therefore many, not, I'm not saying everyone, but many lack financial blessings because they do not know who they serve, and they do not know how to pray. So that brings me to the question, जो unmute करके अपना, यहाँ पे कोई गलत नहीं है और कोई सही नहीं है. I'm still learning. And I will learn till the day I die or I'm raptured. I don't know. But in either case, I will be learning till that last day. Because अगर मैं कहती हूँ आज के मुझे सब कुछ आ गया, दुआ के बारे में भी सब कुछ आ गया, that means I have become Jesus. और जीसस के डिसाइपल्स भी पूरी तरह से नहीं सीख पाए थे. Imagine Peter, जिसको खुदा ने कहा क्या था कि you will be the rock. उसने इनकार कर दिया था यीशु का. At the time of trial, जब वो डर गया और उसने इनकार कर दिया. सो इमेजिन के डिसाइपल्स जो कि यीशु के साथ चलते थे वो भी खौफ खा जाते थे. तो हमने तो यीशु को नहीं देखा, लेकिन ईमानदार फकत ईमान से जीता रहेगा, ये कलाम कहता है. सो लेट मी हेयर यू कि आपका क्या नॉलेज है, आपका क्या कॉन्सेप्ट है कि दुआ क्या चीज है, एंड देन आई विल बिल्ड ऑन दैट सो दैट आई नो वेयर यू स्टैंड. तो जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, कम से कम उनको तो पता चले कि दुआ क्या होती है. बाकी जो सुनने वाले हैं वो जब जब सुनेंगे. आज ये देखिए, ये वाईफाई जो है ना, मेरा और कंप्यूटर का वैसे ही बहुत एक वैर चलता है. आई हेट द कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हेट्स मी. पहले वो मुझे दिखाना नहीं चाह रहा था, शुक्र है अब आवाज आ रही है. आज शुरू जब हमने किया तो मेरी आवाज भी नहीं आ रही थी, खैर फिर वो मैंने दुआ की तो आवाज आ गई. उसके बाद फेसबुक नहीं चल रहा, तो आज हम लाइव नहीं जा सके, फेसबुक पे नहीं लाइव हो रहा, बट दैट्स ओके. आई हैव 4 people who are with me. We worshipped, we praised God, and now God is enthroned. That means, what does that mean? Enthroning God, what does that mean? That means God has listened. That means our worship, our praise, our prayer has reached his throne. He has heard and he's ready to answer, and he has sent angels because my spiritual eyes have been opened, and whenever he desires he shows me the prayers reached his throne. And they and how do prayers reach us? They reach us by angels. God sends angels as a response of answered prayer, and angels come back with our prayers. Sometimes immediately you receive it that very day, or sometimes that prayer is delayed. Sometimes because the angel that is coming gets in contact with a demon and they fight. And of course, the army of God always wins, because that is what we read in Daniel. When Michael was coming down, he had a fight with Lucifer, and the answer was delayed for 21 days. 21 days. Now, that's just one instance. The answer could be delayed for 21 weeks, for 21 months, or 21 years for that matter. And that's my story, because my answer was delayed for 21 years, and that is not God's fault. That is not some angel's fault. That was because my prayer was received, the angels was sent, and I felt short, because I went in the world after asking God, and after I saw the angel being released, I went into the world. I wanted to do my post-graduation. I wanted to be the best doctor. I wanted to have all the praise so that I can feel good that I am doing something for somebody. But that is not what God desired. ये मेरी वांट थी, लेकिन ये खुदा की वांट नहीं थी मेरे जिंदगी के लिए. तो जब हमें अपनी वांट्स समझ में, जो खुदा के वांट्स हमारे लिए हैं कि वो क्या चाहता है, जब हमें वो समझ में आ जाए, तो हमारी जिंदगी का रुख चेंज हो जाएगा. लेट्स हियर prayer. What does it mean for you?
आप उर्दू में बोलें, आप शाल- बोलें, आप पंजाबी में बोलें, मुझे तीनों लैंग्वेजेस समझ में आती हैं। Shalom to everyone. चलो। अकॉर्डिंग टू मी जी, प्रेयर लाइक मेरे लिए तो जिस तरह एक आज सेल फोन का काम है ना, वो सबसे कनेक्शन या कनेक्टेड रखता है, इसी तरह प्रेयर भी हमें हमारी स्पिरिचुअल लाइफ से, खुदा बाप से, मसीह यीशु से कनेक्टेड रखते हैं। इसी के थ्रू हम जो है वो अपनी जो है वो वीकनेस पे काम कर सकते हैं, अपने मैसेज भेज सकते हैं, मैसेज को रिसीव कर सकते हैं, और इसी से अपनी लाइफ को बेटर बेटर बना सकते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि ये एग्जाम्पल सही फिट बैठ रही है कि ये फोन की तरह जो है ना, प्रेयर काम कर रही है मेरी जिंदगी में। एब्सोल्युटली 100% करेक्ट, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रेयर जो भी अपनी डेफिनेशन देगा, आई बिलीव वो सही होगी, बिकॉज हर एक का मानना कि प्रेयर क्या है वो डिफरेंट होता है। और मैं आपको इसमें और एडिशंस करने के लिए मैं बताऊंगी, ताकि आपको और गहरे तौर से समझ में आए, और आप अपनी प्रेयर्स के जवाब कैसे हासिल कर सकते हैं वो आपको समझ में आए, बिकॉज अ क्रिश्चियन हु प्रेज इज अ powerful person. A Christian who prays according to the Bible becomes a very powerful person. He becomes, or she becomes, more powerful than the powerful nation USA. आमेन आमेन। Why? क्योंकि there is power in prayer. तो आपने बिल्कुल ये सही ये कि प्रेयर जो है वो बिल्कुल सेलफोन की तरह, जैसे सेलफोन हमें कनेक्टेड रखता है दुनिया से, अपने दोस्तों से, फैमिली से, कुलीग से, उसी तरह से प्रेयर हमें कनेक्टेड रखता है खुदा से। लेकिन उसमें एक चीज आती है कि प्रेयर जो है वो है मी टॉकिंग टू गॉड इन वेरी सिंपल टर्म्स। मेरा बच्चा होता तो अगर मुझे समझाना होता, क्योंकि बच्चों को आपको बच्चों के लेवल पे जाके समझाना होता है। अगर आप उसको हाई फाई पीएचडी की चीजें से समझाएंगे कि ये शो करेंगे कि मुझे बड़ा आता है, तुम्हारी माँ को बहुत पता है, वो बहुत स्पिरिचुअल है, तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। वो सही। से मुंह खोल के देखेगा और वो बोलेगा हाँ मामा को बहुत आता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट यू नो यू नॉट हेल्पिंग हिम और यू नॉट हेल्पिंग हर। सो जिसका लेवल होता है, आपको उस पर जाके समझाएं तो उसको समझ में आएगा। वो जब उसको समझ में आ जाएगा तो वो आपको ऐसे मुंह खोल के नहीं देखेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, वो कहेगा यस मुझे समझ में आ गया। सो एग्जैक्टली। prayer is talking to God simply. And who is talking to God? यस यस। Every person in the world is talking to God. I'm saying every person, man or woman, every person is talking to God except for यस an atheist. ठीक है? तो कौन खुदा से जी बात? जी। क्रिश्चियन बात कर रहा है, जू बात कर रहा है, मुसलमान बात कर रहा है, जितने जो जो किसी ना किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं वो खुदा से बात करते हैं, क्योंकि प्रेयर का मतलब है खुदा से बात करना। ठीक हो गया? नाउ इन एथियस्ट, who is an atheist? Atheist does not believe that God exists. तो अगर वो बिलीव ही नहीं करता खुद के खुदा एग्जिस्ट करता है, तो वो दो बात क्यों करेगा? सिंपली, अगर कोई चीज एग्जिस्ट, अगर अगर मेरी शादी नहीं होती तो मैं नहीं कह सकती कि मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, बिकॉज आई वुड नॉट हैव हैड अ हस्बैंड। तो अगर वो बिलीव ही नहीं करता कि खुदा एग्जिस्ट करता है, तो हाउ कैन ही टॉक टू गॉड? नाउ प्रेयर इज टॉकिंग टू गॉड, there's a connection. नाउ दिस इज अ मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब है कि आप कर रहे हैं। बट द सेकेंड पार्ट of when your prayer becomes powerful is if God is talking to you in response to your prayer. You are talking to God, and in response to your prayer, now God is talking to you. Now that becomes a dialogue. That becomes a dialogue. And who is God talking to? Now that is the second question.
Is God talking to Muslims? Is God talking to Hindus? Is God talking to Jews? Is God talking to Christians? Who is God talking to? Well, God is talking to everyone. वो एक मुसलमान से भी बात कर रहा है, वो एक जू से भी कर रहा है, वो क्रिश्चियन से भी कर रहा है, वो एक हिंदू से भी कर रहा है, वो एक हर बंदे से कर रहा है, एथियस्ट को छोड़ के, क्योंकि वो तो उसको मान ही नहीं रहा। लेकिन अब इसका तीसरा पार्ट आ जाता है, उसको सुन कौन रहा है, उसको सुन कौन रहा है। तो कलाम हमें बताता है कि खुदा रूह है। God is a spirit, and those who worship him must worship him in spirit and in truth. तो कौन खुदा की आवाज सुन रहा है? जो सच्चे दिल से और रूह में होके चल रहे हैं। तो रूह में होके कौन चल रहा है? रूह में होके वो चल रहा है जो पाक रूह को जानता है। क्या मसीही जो अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं पाक रूह में चल रहे हैं? That's a question. That's a question. कि दुआ आप खुदा से बात कर रहे हैं, इन रिस्पॉन्स टू दैट जब डायलॉग है तो खुदा आपसे बात कर रहा है। तीसरा, आप कैसे सुनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब चौथा पार्ट आ रहा है कि सुनने के लिए एक मीडियम होता है, यानी कि जब आपकी आवाज मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आपकी मेरे तक पहुंच रही है, और मीडियम क्या है? दो मीडियम इस वक्त यूज हो रहे हैं। एक मीडियम है हवा और दूसरा मीडियम है ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं होगी तो मैं जितनी जोर से बोलूं, गड़ा फाड़ के बोलूं, पाकिस्तान तक आपके मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी। तो खुदा उनका शुक्र हो इस टेक्नोलॉजी के लिए कि खुदा ने इंसान को ऐसी हिकमत दी है कि वो आज इस दहाने पे खड़ा है कि हमारी आवाज जो है वो, और हम एक दूसरे की तस्वीर भी देख सकते हैं स्पॉन्टेनियसली। जबकि 70s के जमाने में जब स्टार ट्रैक आई थी 80s में, तो उस वक्त ये बहुत बच्चों के लिए एक फैसिनेटिंग चीज थी। और मुझे याद है मैं मुंह फाड़ के वो 80s में मैं देखती थी कि ये कैसे जो है ये होता है, देखते भी है, बात भी करते हैं। एंड आई हैड नेवर एनी आइडिया कि कुछ सालों के बाद ये हम खुद कर रहे होंगे। दैट इज सो मच फास्ट एडवांसमेंट हुई है। इतनी फास्ट पिछले 6000 साल में एडवांसमेंट नहीं हुई जितनी कि पिछले 100 साल में हो गई है। अगर मेरी नानी जिंदा होती तो, या इस वक्त अगर वो आ जाएं लेट्स सपोज, और उनको खुदावन में सोए हुए बहुत अरसा हो गया, उनकी वो मेरी पैदाइश से भी पहले की खुदावन में सो गई। शी स्लेप्ट इन द लॉर्ड इन 1964 एट द एज ऑफ 70 और 72। तो वो अगर इस वक्त आ जाएं तो उनके लिए ये सब एक मैजिक जैसी बात होगी कि टेलीफोन पे बात हो रही है, तस्वीर नजर आ रही है, बिकॉज उनके जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। सो this is how quickly advancements are happening. लेकिन ये है जिस्म की एडवांसमेंट, ये है अकल की एडवांसमेंट। इससे बढ़ के एडवांसमेंट किस चीज की हो रही है? रूह की। अगर ये सब फ्लैश में सब हो रहा है तो रूह में क्या नहीं होगा? क्या रूह पीछे रह जाएगा? क्या खुदावन नहीं चाहेगा कि जितनी इतनी एडवांसमेंट हो रही है, जो कि शैतान जो है वर्क कर रहा है, कितनी ऐसी ये जो फोन है हम इसको मसीह के कलाम पहुंचाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये फोन ही शैतानी चरखा है जो कि कई लोग इसको मिस यूज करते हैं, और इसमें पोर्नोग्राफी भी चलती है, इसमें आप हर गंदा काम कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और आप घर में भी बैठे हुए होंगे।
आपके बच्चे क्या कर रहे हैं रूम बंद करके, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी खतरनाक चीज ये हो गई है, क्योंकि पहले तो बच्चे को जब रूम में बंद कर देते थे तो आपको तसल्ली होती थी कि अभी गलत काम नहीं कर रहा, ये जो है कहीं बुरी जगह पे नहीं बैठा। लेकिन आजकल के जमाने में अगर आप बच्चे को कमरे में बंद भी कर दें तो उसके हाथ में अगर फोन है तो वो हर गलत जगह पे पहुंच सकता है। और वो बच्चे आजकल के इतने ज्यादा तेज हो गए हैं, इतने एडवांस हो गए कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो फोन को किस तरह से लॉक करके ऐसे छुपा के रखेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो बच्चा आपका क्या क्या कर रहा है फोन में। तो पाक रूह जो है वो बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में, इस तरह से काम करना कि हमारे अंदर सुकूनत करे, ताकि हम उसकी मर्जी पे चल सके। जब हम हस्बैंड एंड वाइफ पाक रूह की मर्जी पे चल रहे हैं तो उनके बच्चे में मान नहीं सकती कि वो गलत सोबतों में पड़ेंगे। और खुदा ना खास्ता अगर वो बड़े होते हैं और टीनेज में वो घर के अंदर नहीं रहते, अगर वो बाहर निकलते हैं और दुनिया की सोबतों में पड़ते हैं, तो वो पाक जो जो उन पे साया पड़ा है कलाम का, और वो जिस पाकीजगी में बड़े हैं, पाक रूह की पाकीजगी में, वो उनको खींच लाएगा। वो उसी तरह से होंगे जैसे कि ये मुसरिफ बेटा था, प्रोडिगल सन। वो उसको दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी, लेकिन फिर भी उसको वो अच्छा नहीं लगा। उसको अपनी हुकूमत चाहिए थी, उसको अपना पैसा चाहिए था, उसको चाहिए था मैं। और वो अलहदा हो गया अपने बाप से, और बाप ने भी उसको अलहदा करके उसको पैसे दे दिए कि जा। उसको बाप को पता था, उसको पता था कि इसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि ये खुद से सब कुछ कर सके, इसकी मैं इसको वापस मेरे पास ही लेके आएगी। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड कि उसकी मैं उसको वापस लेके आई। उसकी मैं ही उसको लेके गई थी उसके बाप के घर से बाहर, और उसकी मैं ही वापस लेके आई। क्यों? क्योंकि जब उसकी मैं टूटी, और उसकी मैं कैसे टूटी, जब उसने उसका सारा मालो दौलत खत्म हो गया, और जब तक उसका मालो दौलत था उसके साथ दोस्त थे, उसके साथ अहबाब थे, उसके साथ डांस करने वाले भी थे, उसके साथ यारी रखने वाले भी थे। लेकिन जैसे ही उसका पैसा खत्म हुआ, उसकी दोस्ती यारी खत्म हो गई, और उसको खाने को भी नहीं था, उसको उसको कोई दोस्त उसको देने के लिए भी तैयार नहीं था। और फिर यहाँ तक कि उसके पास जब खाने के लिए नहीं था तो वो सूअरों की फली खाने लगा, वो सूअरों के जैसा खाना खाने लगा। फिर उसको याद आया कि मेरे घर में तो मेरे बाप के जो नौकर हैं वो भी मुझसे अच्छा खाना खाते हैं, तो लेट्स गेट होम, मेरा बाप मुझे माफ कर ही देगा। तो बाप की ये खासियत है कि वो माफ करता है। और ये जो हमने तमसील जो पढ़ते हैं वो खास किस किस बाप की मानंद है? वो हमारे आसमानी बाप की मानंद है कि तुम जितने भी गलत काम कर लो, तुम जितना भी गलत कर लो, तुम वापस जब मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो ऐसा ही हुआ कि जब वो वापस आया तो उसको इमीडिएटली उसको 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 अपने नौकरों को कहा कि जाओ उसके लिए लिबास लेके आओ, अच्छा लिबास लेके आओ। ये इसके फटे पुराने कपड़े फारिग करो, ये मेरा बेटा है, इसको नया लिबास दो। उसने अंगूठी उतारी, अपनी अंगूठी उसको दे दी। और अंगूठी जो है वो पुराने जमाने में, ये बहुत भेद की बातें हैं, अंगूठी अंगूठी जो है वो हुक्मरानी की अलामत होती थी कि जब बाप बेटे को अंगूठी देता था तो उसका मतलब ये था कि अब तुम हुक्मरान हो। अब आप सोच रहे हैं कि क्रिश्चियन मैरिज में अंगूठी जब बीवी को पहनाई जाती है और हस्बैंड को पहनाई जाती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम एक दूसरे पे हुक्मरान हैं, लेकिन हम दोनों पे हुक्मरान कौन है? वो है यस्सु। ये उस अंगूठी की निशानी होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे बहुत सी मसीही भाई इस अंगूठी की ऑनर नहीं करते, और वो अपनी बीवियों को अपने सर्वेंट समझते हैं, और वो अपनी बीवियों को अपने नीचे समझते हैं, और उन पे हुक्मरानी करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनको अब्यूज करते हैं, उनको मिसयूज करते हैं, उसको नौकरानी जैसे ट्रीट करते हैं। और मैं कहीं ऐसे पास्टर्स को भी जानती हूँ जो अपनी बीवियों के साथ बुरा करते हैं, और वो समझते हैं कि ये करना सही है क्योंकि आदमी को अथॉरिटी है। मुझे कोई पासबान ये कलाम में लिखा बता दे कि बीवी के साथ बुरा सलूक करना उसकी अथॉरिटी है, तो आज से मैं अपने हस्बैंड को भी बोलूंगी कि मेरे साथ बुरा सलूक करे। Because it is not written, it is written, love your wives. What is the meaning of love?
लव इज 1 Corinthians 13:13, जैसे मसीह आदमियों के लिए लिखा है, औरत के लिए नहीं लिखा, आदमी के लिए लिखा है कि जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत रखी ऐसे अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। तो मसीह ने कैसी मोहब्बत रखी कि उसने तो अपनी जान दे दी, उसने अपनी जान दे दी। और यहाँ पे वो जान लेने के लिए तैयार है, जान लेने के लिए तैयार है। They do not honor their wives. They are the home. They are the people. Women are the people who make houses, homes. वो खाना बनाती हैं, वो बच्चे आपके लिए पैदा करती हैं, नाम उनके बाप का जुड़ता है बच्चे के नाम के साथ। उसका क्या होता है? कुछ भी नहीं। पहले वो बाप के घर में होती है और फिर हस्बैंड के घर में आ जाती है, और फिर हस्बैंड का नाम से चलती है, फिर बच्चे को भी अपने हस्बैंड का नाम दे देती है। फिर वो 9 महीने अपने बच्चे को पेट में पालती है, तकलीफ उठाती है, जन्म देती है, और बाप की गोद में बच्चा आता है और बाप किसी तकलीफ से नहीं गुजरा होता। मैं ये नहीं कह रही कि बाप तकलीफ से नहीं गुजरते, लेकिन the sacrifices that women are doing, men should honor. Not all men honor. There are many men who do honor, and I praise God for such men जो कि औरतों की sacrifices को honor करते हैं। और जो आदमी औरतों की sacrifices को honor नहीं करते, खुदा उनको definitely honor नहीं करेगा, because उनको मसीह की मानंद बनना है, मसीह की मानंद। कलाम में ये नहीं लिखा औरतें मसीह की मानंद बने, कलाम में लिखा है आदमी के लिए मसीह की मानंद बनो। कौन से हमारे ऐसे हैं जो कह सकते हैं, जिनके लिए हम कह सकते हैं कि मसीह की मानंद है? बहुत कम ऐसे हैं जिनको मैं समझती हूँ। मैं अगर अपनी नजर से देखूं, कि मैं रूह के फलों को देखूं और मैं कह सकूं कि ये मसीह की मानंद जो है ये काम कर रहे हैं। Definitely, ultimate judge is our God. I'm not judging, but I'm just seeing the fruits. क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम उनके फलों से उनको पहचानोगे, उनके फलों से पहचानोगे। तो हमें पहचान करनी है, और अगर हम पहचान नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? क्या होगा? फिर हम गलत लोगों में उठे बैठेंगे, जिनकी जिंदगी में फल नहीं है। वो दरख्त जो है वो खुदावंद को पसंद नहीं। और अगर आपके ऐसे दोस्त अहबाब हैं, और अगर आपके ऐसे कई दफा हमारे फैमिली मेंबर्स ही होते हैं जिनकी जिंदगियों में कोई फल नहीं होता, और फैमिली तो मजबूरी होती है, बिकॉज आप फैमिली को छोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर आपके दोस्त अहबाब ऐसे हैं जिनकी जिंदगियों में कोई फल नजर नहीं आ रहा, तो या तो आप उनकी कटाई छटाई करें, उनके गिर्द कोई वो गड़ा खोदे, उसमें कोई गोडी करे, खाद डाले, ताकि अगर वो सूख रहा है तो उसमें कुछ नरिशमेंट आए और वो फल देने वाला हो। क्योंकि ये मिसाल हम पढ़ते हैं, ये मिसाल है कि वो मालिक आया और वो दरख्त में फल नहीं लग रहा था और उसने कहा इसको काट डालो। तो जो माली था उसने कहा नहीं, अब मुझे 3 साल दे देना, मैं इसकी गिर्द गोडी करूंगा, मैं इसके ख्याल रखूंगा, मैं इसमें पानी दूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। अगर 3 साल के बाद भी इसने फल नहीं दिया तो काट डालना। सो व्हाट वाज दैट? एक माली की मिसाल क्यों है बाइबल में? बिकॉज गॉड गिव्स अस टाइम। और 3 साल का वक्त क्यों? वो 4 साल भी कह सकता था, वो 1 साल भी कह सकता था। और इंटरेस्टिंगली हर दरख्त का जो फल देने का सीजन है वो भी डिफरेंट है। ये मेरे फादर ने मुझे बताया, बिकॉज हमारे घर में मुख्तलिफ दरख्त थे। वी हैड ग्रेप्स एंड एप्रिकॉट्स एंड पीचेस एंड चेरीज एंड आलमंड्स, ये दरख्त थे हमारे घर में। और जब हर साल मैं देखती थी, मुझे बादाम बहुत पसंद थे, तो बादाम पे बादाम नहीं आता था। तो आई यूज्ड टू से डैडी इस पे क्यों नहीं बादाम निकलता? तो माय डैड टोल्ड मी कि बेटा बादाम का दरख्त 7 साल के बाद देता है। इस तरह से हर एंड ही टोल्ड मी, मुझे याद नहीं अब एग्जैक्टली, लेकिन हर फल का एक टाइम होता है, उसके बाद वो फल देना शुरू होता है। तब तक आपको उसको केयर करने की जरूरत होती है। अगर आप उसे पहले उसको काट देंगे तो वो फल देने वाला होगा, हो सकता है उसका 4थे साल में फल आए और आपने उसको 3रे साल में काट दिया। तो ये एक मिसाल थी। क्यों 3 का फिगर क्यों दिया गया था? ये एक मसीह के लिए एक मिसाल है, क्योंकि 3 साल मसीह ने प्रीचिंग की,
और 30 साल की जिंदगी थी जब he was ready to preach the gospel. What was the gospel? Was he preaching the gospel? Gospels तो बाद में लिखी गई, लेकिन gospel क्या थी? gospel ये है कि दूसरे पे रहम करना, कंपैशन करना। रूल्स पे चलते रहोगे और हर एक को रूल से तोलोगे और कहोगे कि मैं सही हूं और वो गलत है, देन आप के जो कलाड़ा है आपकी दरख्त के नीचे रखा हुआ है, क्योंकि वो रबीज जो थे वो सही थे और उनकी नजर में वो प्रोस्टिट्यूट गलत थी, तो मसीह ने उसको माफ किया। सो माफ करना बहुत जरूरी है। एक मसीह की जिंदगी में माफी अगर रही है तो वो जितनी भी दुआएं कर रहा है वो जब संडे को अगर चर्च जाए या जब भी बैठे तो वो खुदा के हजूर नहीं पहुंच रही, क्योंकि उसने माफ नहीं किया। अगर किसी शख्स ने माफ नहीं किया और उसके दिल में गुबर है किसी भी शख्स के लिए, चाहे वो फैमिली मेंबर है, चाहे दोस्त है, चाहे कोई आपका कुलीग है, चाहे कोई भी है, अगर उसने अपना दिल धो के साफ करके नहीं आया तो और वो दुआ में बैठा तो उसकी कोई दुआ एक्सेप्ट नहीं होगी। Why? Because it is written. It is written कि अगर तेरा भाई तुझसे नाराज है तो तू पहले जाके उसको मना और फिर अपना तोहफा जो है वो ऑल्टर पे, पाक मकाम पे लेके आना। और भाई कौन है? मियां बीवी भाई भाई हैं, यानी कि एक रिलेशनशिप। वी आर कॉल्ड द सन्स ऑफ गॉड। जब हम बॉर्न अगेन हो जाते हैं तो कलाम कहता है कि यू आर द सन ऑफ गॉड। तो दैट मीन्स आई एम अ सन ऑफ गॉड, माई हस्बैंड इज अ सन ऑफ गॉड। और अगर हमारी आपस में इख्तलाफ हो जाता है तो हम जब तक आपस में एक दूसरे से मेल जोल करके सुलह नहीं कर लेते, हम अगर अकेले अकेले भी दुआ करेंगे तो वो कबूल नहीं हो रही। इसी तरह से भाई बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, सॉरी बेटी माँ बेटी है, बाप बेटा है, कोई भी रिलेशनशिप अगर उसमें उसमें आप फॉरगिवनेस नहीं है तो आपका रिलेशनशिप, जो आप जब दुआ कर रहे हैं तो आप तो कर रहे हैं, वो सुन भी रहा है लेकिन वो आंसर नहीं कर रहा, क्योंकि कलाम में कह रहा है कि मेरे कान भारी नहीं कि तुमको सुन ना सके और मेरा हाथ छोटा नहीं कि तुम तक पहुंच ना सके। फिर हमारी दुआओं के जवाब क्यों नहीं आते? फिर आगे नहीं हम पढ़ते ना क्या लिखा है? आगे लिखा है क्योंकि तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हें मुझसे जुदा कर दिया। और गुनाह क्या है? एक मसीही को पता ही नहीं कि गुनाह क्या है। वो समझता है मसीह मर गया, जी गया, हमारे गुनाह धुल गए, हम अब राइचस हो गए, नाउ वी बिकम सेंट्स। आई एम नो सेंट बिकॉज आई स्टिल सिन एवरी डे। सेंट्स किसको कहा गया? जिन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी, अपना सब कुछ खत्म कर दिया, जो मर गए, जो प्रिजन में डाल दिए गए, जिन्होंने किसी चीज को देखा नहीं, जिन्होंने आंधी तूफान को नहीं देखा। पॉल बिकेम अ सेंट। लेकिन सेंट का मतलब ये नहीं कि उनके स्टैचू बना के उनको पूजना शुरू कर दो, विच वी सॉ इन रोम। पीटर का स्टैचू है, पीटर के लिए पूरा पूरा चर्च है, सेंट पीटर्स बेसिलिका, वहां पे पीटर का मुजस्मा है, उसको लोग चूम रहे हैं। अरे भाई, पीटर इज डेड, पॉल इज डेड। Forgive me, my Catholic brothers, Mary is also dead. I honor her. She played her part. She played an excellent role in bringing up Jesus, क्योंकि उसने वो परवरिश दी कि यीशु ने पूरा कलाम तौरा पढ़ा, उसने स्ट्रिक्टनेस भी दिखाई होगी, उसने लीनियंसी भी दिखाई होगी, कि वो 30 साल की उम्र तक इतना वो परफेक्ट था कि यीशु के उसने आवाज सुनी, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। Because the mother taught him well. बाप तो पतली गली से भाग रहा था, जो उसका दुनियावी, जो आसमानी बाप की बात नहीं कर रही, वो तो कवानी से पैदा हुआ था। वो तो जब उसको पता चला कि माँ हामला, मेरी मंगेतर हामला है, वो पतली गली से भाग रहा था। उसने बोला मेरी तो बदनामी हो जाएगी, तो मैं बदनामी नहीं सह सकता, मैं भाग जाऊं, इसको भी बदनाम ना करूं, तो बाकी जो होगा ये जाने, इसका बच्चा जाने, मैं तो भाग जाऊं। लेकिन चूंकि उसने बदनाम करने की ना सोची, उसने उसको तहमत नहीं लगाई कि ये बच्चा किसका है, ये मेरा नहीं है, तुम नापाक हो, तुम गलत औरत हो। उसको खुदावंद ने ख्वाब में दिखा दिया
और फिर उसने उसके साथ रहा, और जहां जहां फिर पाक खुदा की आवाज उसको सुनी, उसको सुनाई दी, वो वहां वहां उसको लेके गया, और उसकी उसकी पैदाइश जो कि किंग ऑफ किंग्स कहलाता है, जो कि दुनिया का जो कि दुनिया की जजमेंट के लिए आ रहा है, उसको उसकी पैदाइश कहां हुई? एक अस्तबल में। क्यों? किसी महल में क्यों नहीं? ही वॉज द किंग। किसी एक हमारे घर में बच्चे होते हैं, पहले से ही तैयारियां होती है उसके लिए, गॉट आएगा, उसके लिए नरम नरम तकिया होना चाहिए, नरम कंबल होना चाहिए, खूबसूरत कपड़े होने चाहिए, किसी भी तरह से उसको सॉफ्ट टॉयज होने चाहिए, उसके इर्द गिर्द सॉफ्ट टॉयज हो, किसी तरह से उसको तकलीफ ना हो। एंड आवर सेवियर, when he was born, he was a baby just like any other baby. He was born in a manger, एक अस्तबल में। वहां पे कितनी बदबू होएगी। अस्तबल में आप कभी गए हैं जहां घोड़े बकरी वो सब होते हैं? What was he trying to teach? What was our father trying to teach us? कि मैं जो कि रूह हूं, इसके पेट में आया, और अब एक बच्चे की मानंद यहां पे हूं, और मुझे कोई बड़ी जगह नहीं चाहिए। तो तुम छोटा क्यों नहीं हो सकते? तुम छोटा क्यों नहीं हो सकते? तो अगर हम छोटा नहीं होते तो क्या होता है कि हम दुआएं करते रहते हैं, हम दुआएं करते रहते हैं, और हमारी दुआ वापस लौट के आ जाती है। कईयों की दुआ मुंह से निकलती है और जमीन पर गिर जाती है, आसमान तक तो पहुंचती नहीं है। कईयों की दुआ मुंह से निकलती है और यहां तहलील रह जाती है, ऊपर नहीं उठती। और जिन्होंने कुछ फिजिक्स पढ़ी है या नहीं भी पढ़ी, थोड़ा सा पता होगा कि गर्म हवा किधर उठती है। जब गर्म हवा होती है, जब आप अगर हीटर लगाएं, तो गर्म हवा क्या होती है? ऊपर को उठती है। अगर आप कभी आपने नोट किया हो, आप जब हीटर, इस दफा सीजन में नोट करना, जब हीटर ऑन होता है तो आप नीचे हाथ लगाएं, और फिर कभी चेयर या ऊपर कहीं जाए और छत के करीब हाथ लगे, तो सबसे वार्म जगह छत के करीब वाली होगी। व्हाई? बिकॉज वार्म एयर राइजेस अप। तो दुआ, जिसकी दुआ में खुदा की मर्जी और पाक रूह की फायर है, उसकी दुआ ऊपर उठती है। वो नीचे नहीं गिरती, वो तहलील नहीं रहती, वो ऊपर उठती है। वो इतनी ऊपर उठती है कि डायरेक्टली खुदा के तख्त तक पहुंच सकती है, और खुदा जवाब देता है। ये एक और बात है कि वो जवाब कब आए। सारा को जवाब अगले साल मिलना था, उसकी औलाद अगले साल होनी थी, आइजक ने अगले साल आना था, लेकिन उसने विजडम का मुजाहरा किया, उसने अपनी अकल इस्तेमाल की, और अकल थी कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, मेरे हस्बैंड से तो फिर भी औलाद हो सकती है, चलो मैं अपनी मेड सर्वेंट हाजरा को दे देती हूं, इससे बच्चा पैदा होगा तो उसको मैं पाल लूंगी। वो अब्राहम का होगा, मैं अब्राहम को बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं उसको पालूंगी। एंड दिस वाज नॉट द प्लान ऑफ गॉड। उसने खुदा की कुदरत को नहीं जाना। हम जब खुदा की कुदरत को नहीं जानते तो खुदा मौजज़ात नहीं करता, लेकिन जो उसने वादा किया है, जिस मौजे का वादा किया है, वो जरूर होता है, लेकिन वो डिले हो जाता है। जिस तरह से सारा की जिंदगी में खुदा ने वादा अब्राहम से किया था, अब्राहम और सारा से किया था, अब्राहम और हाजरा से नहीं किया था, हेगर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, who was the maid servant. She was the Egyptian maid servant who used to worship Egyptian gods. सारा पाक थी, वो यहोवा को पूजती थी, पाक मानती थी, उससे दुआ करती थी, लेकिन वो इतनी अकलमंद रूह में नहीं थी। तो उसका प्लान तो फेल हो गया, लेकिन क्या खुदा का प्लान फेल हुआ? खुदा का प्लान कभी फेल नहीं होता। वो जो कहता है वो करके दिखाता है। व्हाई? बिकॉज कलाम कहता है कि जमीन और आसमान टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की कही हुई बात ना टलेगी, ना टलेगी। और उसकी मुंह की कही हुई बात कहां कलम बंद है? इन 66 बुक्स में, 39 in the Old Testament and 27 in the New Testament. ये उसके अल्फाज है जो कलम बंद हो चुके हैं। इसका एक एक नुक्ता
इट हैज अ मीनिंग। मैं पास्टर बेनी हिन से बहुत सीखा, मैंने डिफरेंट पास्टर्स से सीखा। इतना मैं आपको बार बार बता दूं कि pastors are not Jesus, okay? They can make mistakes. So when a pastor makes mistake, please have a big heart to forgive the pastor, and forgive me as well if I make a mistake. And if you are more righteous and more correct than I am, then correct me with the word, please. So otherwise God is rare to correct all of us. उन्होंने एक दफा मैसेज दिया था जो मैंने साल पहले, आई थिंक शायद 20 साल पहले पढ़ा था, और मैंने अपनी बाइबल में भी लिख दिया कि every word has a meaning in the Bible. Even a full stop has a meaning in the Bible. If you're not understanding it, that's beyond it. वो एक दूसरी बात है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि कलाम में क्या लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कलाम झूठा है, कलाम सच्चा है। Why? Because it was written by the inspiration of the Holy Spirit. Holy Spirit क्या है? पाक रूह है। और अगर आप कह रहे हैं कि कलाम झूठा है, तो आप पाक रूह के खिलाफ बात कर रहे हैं। और अगर आप पाक रूह के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो कलाम में क्या लिखा है कि हर गुनाह माफ हो जाएगा। यीशु को आप बुरा भला करें, उसको कुछ भी कहें, वो भी माफ हो जाएगा, लेकिन पाक रूह के खिलाफ की भी बात माफ नहीं होगी, ना इस दुनिया में ना अगली। ये लिखा है, ये लिखा है। And those who know the word will know it. हमारे पास we have a pastor in the making, जो कि from who's a very humble pastor, who's listening to me, who honors my word, who honors the authority, because he is not a pastor now, but he's learning. And that is the spirit all pastors should have. क्योंकि जब 3 साल का वक्त पूरा हो जाता है, that means you have now become a disciple of Christ. 3 साल जो है वो सेमिनरी के लिए दिए गए हैं। 3 साल के लिए उसको टाइम मांगा गया था उस माली ने अपने मालिक से कि मुझे 3 साल का टाइम दे दो कि मैं इसके गिर्द जो है वो खोदूं और इसको पानी दूं, इसको खाद दूं, और फिर 3 साल के बाद आना, अगर इसमें फल नहीं निकला तो इसको काट देना। 3 years। और यीशु की मिनिस्ट्री 3.5 years। 3.5 years के लिए उसके साथ उसके शागिर्द चलते रहे, उसके साथ खाते थे, पीते थे, उसका हर एक्शन देखते थे, और जाके फिर मिरेकल्स भी करते थे। यहां तक कि एक दफा उनसे अब नहीं हुआ तो वो वापस आए कि ये हमसे नहीं हो रहा, हमने इतनी दुआएं की और ये मिरेकल नहीं हो रहा। और फिर यीशु ने कहा, ये कैसे होगा? कैसे होगा? कोई अनम्यूट करके मुझे बताएगा जो 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 कलाम जानता है, ये कैसे हुआ? यीशु ने कैसे क्या कहा, ये कैसे होगा? जब हम दुआ भी कर रहे थे और वो नहीं हो रहा था काम। तो जो कलाम जानता है वही बता सकता है, किसी को नहीं पता। कोई अनम्यूट करके मुझे बताएगा? यीशु ने उनको कहा था कि ये दुआ और रोजा रखे बगैर ये नहीं हो सकता। तो रोजा क्यों कहा गया था? रोजा इसलिए ताकि हम और घटें, क्योंकि जब हमारी ईमान की कमजोरी होती है तभी मौजात नहीं होते। वो बेचारा तो ईमान के साथ ही आ रहा है अपना मौजा लेने के लिए, वो बगैर ईमान के नहीं आ रहा आपके पास, वो ईमान के साथ ही आ रहा है कि ये मुझे मिल जाएगा। इट्स जस्ट लाइक आपके पास 100 रुपए हैं और आप दुकान में चीज खरीदने गए। अब आपके पास अगर चीज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका 100 रुपए की वैल्यू नहीं है, आपके पास चीज नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि आपको चीज लानी है ताकि वो खरीद सके। सो द पर्सन who's coming to you with a prayer request, he or she has full faith. How much faith do you have that God is going to work for you when you pray? This is prayer, that when you pray, God is listening and he answers immediately. And if he's not answering immediately, that means we have to decrease. We have to decrease. हमें घटना है, जैसे कि पौलुस रसूल ने कहा कि मैं घटूं और वो बढ़े। तो खुदावंद इस कलाम के रूह से आप सबको बरकत दे, और आप जाने कि फल पैदा करना हमारा फर्ज है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
और आपके दोस्त अहबाब, आपके फैमिली मेंबर्स, अगर आपको नजर आ रहा है कि फल नहीं है, तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके गिर्द खड्डा खोदें, उनमें खाद डालें, उनमें पानी लगाएं, ताकि उनमें फल आए। नहीं तो 3 साल के बाद दरख्त काट डाला जाएगा। Oh, Heavenly Father, I thank you, Lord, for this word. And this is a word of warning as well, because Jesus is coming very soon. Father God, enable us to bear fruits that you desire, the fruits of the Holy Spirit. And there are 9 fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. And against these there is no law. Enable us to bear these fruits so that we are not chopped off. Father God, I pray for all those who are not producing fruit at the moment. And I pray for myself to enable me that I may be able to trim them, give more humus, more water, bring them out in the sunshine if they are out in the dark, so that they may be able to produce fruit, or else they'll be put in the lake of fire. The Spirit of truth will guide you as you wear the belt of truth. That's the first armor of God. And as I close today, the 7-part series and the 7th armor, prayer, the next we start, Father God, enable me. As I close this series, I bless everyone in the name of Jesus. Father God, may they be able to understand the depth of prayer. And when they pray, heaven can move for them. When they close whatever on earth, it's closed in heaven. And when they open on earth, it is open in heaven in accordance to your will alone. I ask and I believe and I receive in the only name that I know, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. And the people said, Amen. आप लोग को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? Amen. 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 Thank you so much. और नेक्स्ट सेशन बताती चलूं, ये 7 पार्ट सीरीज खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट प्रेयर पे ही शुरू होगी, और आई डोंट नो कितने पार्ट सीरीज होगी, लेकिन प्रेयर जो है ना, मैं बहुत कुछ और शेयर करना चाहती थी, लेकिन इट्स सच अ वास्ट टॉपिक कि आई हैव जस्ट टच्ड 1% ऑफ व्हाट प्रेयर इज, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको उस मकाम पे लेके जाऊं जहां आप बोले और जवाब इंस्टेंटली आए, जहां आप बोले और जवाब इंस्टेंटली आए। जैसे मेरी जिंदगी में खुदावन इंस्टेंट जवाब दे रहा है। आई आस्क, नॉट ऑलवेज, बट मेनी अ टाइम्स, आई वुड से 15 to 20 times, God is answering me instantly, or at least within 7 days. तो मैं चाहती हूं कि मैं आपको उस मकाम तक लेकर जाऊं। तो नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट from tomorrow, of course, Saturday, and it will be on prayer. So God bless you, and let's close with the Lord's Prayer. Please guide us, whoever wishes to, in the Lord's Prayer. Okay, close your eyes. Let's start. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, as it is in heaven. As it is in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. From thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Forever and ever. Amen. Amen. For thine is the kingdom and the glory. Yes, Father God. Glory belongs to you. None belongs to me. I just am honored to serve you as a servant and please you with the faith that you are growing my faith every day. And I pray that
their faith also increases. And I bless them with the gift of faith, because faith is a gift and faith is a fruit. For a fruit, they have to work themselves. But as a gift, I gift them with the gift of faith. Do you receive? Who receives? Can they say, I receive? I receive. Amen. Amen. So shall it be. So shall it be. Because you have confessed with your mouth, you have received. For those who cannot, if they are at work or someplace, if they can write it, or if God knows, or their heart is saying, when you have received it in your heart, God is ready to work for you, because God waits. The best quality of God is He waits. He waits. He waits for us because He knows that we are small. We are in the flesh and He is the Spirit. God bless you. I'll see you tomorrow. Shalom, shalom. And as the Jews celebrate Shabbat from this evening, we pray for Jews as well, that they may come to the knowledge of Lord Jesus. God bless you.